A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the theoretical as well as practical concepts related to the last chapter of the volume 1 part A of accountancy, that is in dissolution of partnership form. And you can see that in all those videos which are related to the chapter number 6, firstly we discussed what is the meaning of dissolution of partnership form and how it is different from reconstitution of partnership or dissolution of partnership. Thereafter we can see that what are the account should be prepared at the time of the dissolution of partnership form, that is in preparation of realization account, partners capital account, partners current account, partners loan account, and at last cash or bank account. As well as we can see that a lots of the journal entry which are prepared at the time of the dissolution of the partnership firm, as well as the special provision of workmen compensation reserves and increase at the time of the dissolution of the partnership firm related to the dissolution expense or realization expense, which are given in the question in the different cases. And we can see that in this chapter the question is asking in a different manner. So in today's video we conclude the chapter number 6, and thereafter we will move to the chapter number 7 and the first chapter of the volume 2 of class 12 accountancy. So without creating delay, let's we start the today's session and the last video of the chapter number 6, that is in dissolution of partnership form. And if you have any doubt in any topic from this chapter, please ask me in the online classes. So in today's video, firstly we discuss the question number 33, which are very important for the examination point of view, that is in Adhiraj and Karan were partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, the firm was dissolved. After the transfer of the assets other than cash in hand and bank and third party to the realization account, the following information was provided. And at last the question information is given: pass necessary journal entries for the above transaction on the dissolution of the firm. And this question is already asked in the CBSE 2019 Chennai. So you can see that in the question number 33, we see that there are basically 6 conditions are given, and we have to pass the journal entries assuming that की assets ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में एंड थर्ड पार्टीज की जो लायबिलिटीज हैं वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है. सिर्फ हमें रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स, पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, रियलाइजेशन एक्सपेंस और वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व से रिलेटेड जो भी इंक्रीज हैं उनको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ द जर्नल एंट्रीज. सो इन द क्वेश्चन नंबर 33 you can see that there are 2 partners. The name of the 2 partners is Adhiraj and Karan, and the profit sharing ratio of Adhiraj and Karan is 3:2, and we had to pass a journal entry on the dissolution of the partnership form. And condition number 1 is very simple, is furniture of 70,000 was sold for 68,000 by auction and auctional commission amounted to 2,000. So you can see that हमने 70,000 का फर्नीचर 68,000 में सोल्ड किया और ऑक्शनल को कमीशन कितना दिया, 2,000. तो जब भी एसेट्स रियलाइज होती है कैश में तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बट अमाउंट की बात करें तो यू कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ द फर्नीचर रियलाइज्ड इन कैश इज 68,000, जिसमें से हमने 2,000 का ऑक्शनल कमीशन दे दिया है. सो नेट अमाउंट रियलाइज कितना हुआ होगा, 66,000. सो दिस इज द फर्स्ट journal entry which are passed in this question, that is in bank account debit to realization account.
After that, this number second will be Adhiraj loans amounted to 35,000 was settled at 37,500. Adhiraj loan means Adhiraj is a partner, so उसका लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, उसको लिए हम अलग से लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो अधिराज को पे कितना करना था 35,000 का, बट हमने पे कितना किया है 37,500. तो जो 2,500 का लॉस हुआ है इट विल बी डील विद द रियलाइजेशन एंड इट इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन. सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. So the entry will be AS loan account 35,000, realization debit 2,500, to bank 37,500. Number third, stock. जो थर्ड है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझिए. Out of the stock of 80,000, current took 50% of the stock at a discount of 20%. यानी सी के पहले पॉइंट में कह रहा है कि टोटल स्टॉक था 80,000 जिसका 50%, अब आपको सोचिए 80,000 का 50% कितना होगा 40,000, उसको करंट ने टू ओवर कर दिया. तो जब भी कोई पार्टनर कोई भी एसेट्स टेक ओवर करता है तो क्या होता है करंट कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन. अब सवाल उठता है कितना टेक ओवर कर रहा है 80,000 का स्टॉक 50% टू ओवर कर रहा है, यानी 40,000 का स्टॉक वो टू ओवर कर रहा है at a discount of 20%. यानी 40,000 का जो स्टॉक है उसे 20% डिस्काउंट पे टू ओवर कर रहे हैं. तो 40,000 का 20% कितना हुआ 8,000, बचेगा कितना 32,000. इट मींस करंट जो है वो स्टॉक किस वैल्यू पे टू ओवर कर रहा है 32,000 पे टू ओवर कर रहा है. गॉट इट. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग ऑफ द स्टॉक यानी 80,000 का 50% 40,000 का स्टॉक किसने टू ओवर कर लिया करंट ने. जरूर उसने 32,000 पे टू ओवर किया है, लेकिन जो बचा हुआ 40,000 है उसके लिए क्वेश्चन में कह रहा है while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. ठीक है, जो बाकी स्टॉक है उसको हम लोगों ने मार्केट में बेच दिया. तो उसकी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितने पे बेचा 40,000 का स्टॉक बचा हुआ था. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80,000 में से 40,000 का स्टॉक ऊपर कर लिया गया, बचा 40,000 का स्टॉक और 40,000 का जो स्टॉक है उसको हमने सोल्ड आउट कर लिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, यानी 30% प्रॉफिट पे बेचा. एंड 40,000 का 30% कितना हुआ 12,000, तो सोल्ड वैल्यू कितनी होगी 52,000. ओके, सो द एंट्री विल बी अ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आप चाहें तो सी का केस 1 एंड केस 2 दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं. केस कैपिटल डेबिट 32,000, बैंक डेबिट 52,000 टू रियलाइजेशन 84,000. So this is an general entry of the condition C. Now let's move to the condition number D. Condition number D says that a bills receivable of 3,000 under discount was honored as the acceptor had become insolvent, hence the bill had to made by the firm. फर्म का एक बिल था 3,000 का अंडर द डिस्काउंट, यानी उसने आपने बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था. वो बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि जिससे आपने बिल एक्सेप्ट कराया था यानी ड्रॉ भी वो इंसॉल्वेंट हो गया. यू नो वेरी वेल इन द क्लास 11th, यू नो वेरी वेल कि आपको एक बीआर मिलता था, फिर आप उसको बैंक से डिस्काउंट कराते थे. एंड आफ्टर सम टाइम ये पता चला कि बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि जो ड्रॉ भी जिसे पेमेंट करना था ड्यू डेट पे वो इंसॉल्वेंट हो गया. अब उस बिल का पेमेंट कौन करेगा? उस बिल का पेमेंट करेगा फर्म, क्योंकि फर्म को ही करना है. इंसॉल्वेंट हो गया तो ये हमारे लिए क्या हो गया लॉस हो गया. रियलाइजेशन पे क्या हो गया लॉस. एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितने का लॉस हो गया 3,000 रुपीस का. और दूसरी बात कि हमने बैंक को पेमेंट किया, सो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जहां पर हम ड्रॉ भी डेबिट टू बैंक करते थे एट द टाइम ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बिल,
when bill is discounted from the bank, you know very well, तो डिस्काउंट होता तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू BR. अब बिल डिसऑनर होता तो हम लोग एंट्री करते थे ड्रॉ भी अकाउंट डेबिट टू बैंक. बट यहाँ पे ड्रॉ भी का नाम डेबिट होगा, किसका नाम डेबिट होगा, रियलाइजेशन का, क्योंकि इट इज एन लॉस ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. तो ये पॉइंट 4 थोड़ा सा क्लास 11 से रिलेट था. फिफ्थ पे हम लोग चलते हैं. फिफ्थ भी ऑटोमेटिक थोड़ा सा इजी है, उसमें सीधा सीधा बोला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000. यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बैलेंस दिख रहा है 56,000, और आपको पता है कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं बाय द पार्टनर, दैट इज एन A and K. A is capital debit, K is capital debit to profit and loss, and amount of the profit and loss is 56,000, and this 56,000 will be distributed by A and K in the ratio of 3:2, and the amount is for partner A is 33,600 and partner K is 22,400. Now let's we move to the condition number F. If we are talking about the condition number F, you know very well it is related to the realization expense, and the condition of realization expense says that realization expense amounted to 2,000 which were paid by Adhiraj. यानी रिलेशन एक्सपेंस हुआ था 2000 जिसे पे किया पार्टनर ने, अधिराज ने. एंड यू नो वेरी वेल जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस किसको पे करना था, पार्टनर को, किसको पे करना था, फर्म को. लेकिन इस कंडीशन में पे किसने किया, अधिराज ने. इसका मतलब फर्म पार्टनर ने फर्म के भी पे कर दिया, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल, and amount of the dissolution expense is 2,000. So this is the solution of the question number 33 which asked in the 2019 board examination, and it is a very important question for this chapter. So please note down the solution of the question number 33 in your copy properly, and if you have any doubt so please ask me. Okay. So after solving the question number 33, we completed the chapter number 6, that is in dissolution of partnership form. So after completing the chapter number 6, that is the last chapter of the volume 1 of class 12th accountancy, that is in dissolution of partnership form, let's we move to the volume 2. In the volume 2, there are basically 3 chapters are given in the syllabus. So firstly we discuss about the theoretical concept in the volume 2, and the topic is company accounts. So now when we are talking about the class 12 commerce accountancy syllabus related to the volume 2, and you know very well in the volume 1 we discussed the 6th chapter. First, accounting for not for profit organization. Second, accounting for partnership firm fundamental. Third, change in profit sharing ratio. Fourth, admission of a new partner. Fifth, retirement and death of partner. Sixth, dissolution of partnership firm. And thereafter we will move to the volume 2. In the volume 2 of class 12 accountancy, there are basically 3 chapters. The first chapter will be a issue of share. बेसिकली वॉल्यूम 2 का जो नाम है वो है कंपनीज अकाउंट, यानी इस पूरे वॉल्यूम 2 में हम लोग कंपनीज अकाउंट पे डिस्कशन करेंगे. सो 3 चैप्टर्स हैं यहाँ पर. पहला इशू ऑफ शेयर, सेकंड इशू ऑफ डिबेंचर, थर्ड रिटर्न
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये जो टर्म है शेयर और डिबेंचर, ये ऑलरेडी आप लोगों ने 11th में डिस्कस कर लिया है कि कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। बट हम न्यूमेरिकल टॉपिक पर पहुंचने से पहले कंपनीज अकाउंट के जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, इन तीनों चैप्टर्स तक पहुंचने से पहले हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें इस पूरे यूनिट में पढ़ने हैं, जिनके बारे में हमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो टॉपिक्स हैं जैसे कि व्हाट डू मीन बाय कंपनी एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट provision of the Companies Act 2013 and Old Companies Act 1956, what are the characteristics of the company, as well as we discuss about the very important topic that is the kinds of company. Company कितने types की होती है, as well as we also type of the share, discuss about the share and its type, शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, शेयर का मतलब, शेयर के टाइप्स, शेयर का फीचर। ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो हमें इस पूरे यूनिट में डिस्कस करने हैं। इसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेयर, यू नो वेरी वेल इन द क्लास 11 बिजनेस स्टडी, यू नो वेरी वेल देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ द शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सो उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द शेयर कैपिटल, व्हाट डू वी मीन बाय शेयर कैपिटल एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट to understand the meaning of share capital and the kinds of the share capital, authorized share capital, issued share capital, called up share capital, paid up share capital। सो ये थ्योरेटिकल टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में मैं बेसिकली कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में हमें थ्योरेटिकल टॉपिक के हिसाब से ये भी पढ़ना है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर कैसे अलॉट होता है, और पढ़ना है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करती है ये भी हमें डिस्कस करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बैलेंस शीट बनाते थे, बट कंपनीज का जो बैलेंस शीट है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है ये भी हमें सीखना है। और थ्योरेटिकल टॉपिक में हमें कई अदर थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने हैं, अदर्स टॉपिक लाइक जैसे कि हम लोग बात करें व्हाट वुड यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक छूट जाए तो प्लीज इन्फॉर्म मी, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो अदर टॉपिक में हमें प्राइवेट प्लेसमेंट पे डिस्कशन करना है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ईएसओपी क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर, ये नाम आपने नहीं सुना होगा। स्वेट इक्विटी शेयर इज आल्सो द टाइप ऑफ द इक्विटी शेयर, लेकिन जनरली इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है। राइट इशू, ये भी एक टॉपिक है आप थ्योरेटिकल जो आपको पढ़ना है। बाई बैक ऑफ शेयर, शेयर का बाई बैक क्या होता है, और इसके साथ साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पढ़ना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शायद आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ये कुछ समरी पार्ट है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो हमें इस वॉल्यूम 2 कंपनीज अकाउंट में पढ़ना है। यानी पहली बात ये कि क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी का जो वॉल्यूम 2 है यानी कंपनीज अकाउंट है, उसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर नंबर 7 में इशू ऑफ शेयर के ऊपर डिस्कस करना है, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और अगर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें कंपनीज अकाउंट की,
तो इन न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे डिस्कशन करने से पहले कि शेयर इशू होता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है, क्या अकाउंट बनता है, डिबेंचर इशू होता है, रिडम्पशन होता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है, क्या अकाउंट बनता है, इससे पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। वो थ्योरेटिकल टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या हैं, कंपनी का नेचर क्या है, फीचर क्या है, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो शेयर क्या होता है, शेयर के टाइप्स क्या हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, शेयर कैसे अलॉट करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या पब्लिक को, कंपनी अपना बैलेंस शीट कैसे बनाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर, राइट इशू, बाईबैक ऑफ शेयर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इस जैसे जो टॉपिक्स हैं इस पे हमें डिस्कस करना है। So without creating delay, let's we start the few theoretical topic of this chapter. So let us start. Company account, issue of share, and then chapter number 7, and it is the first chapter of the volume 2 of part A. So firstly we discuss about the definition of company. What do you mean by company? You know very well, according to Companies Act 2013, company is an voluntary association of the person formed through the process of law for the purpose of the carrying on some business. Apart from this, the very famous person, that is according to Professor Hanning, according to Professor Hanning, company is an artificial person. A company is an artificial person. A company is an artificial person created by law. Created by law, having separate entity, with a perpetual succession, and a common seat. And it is a very famous definition of the company according to the Professor Hanning. So let's see out. According to the Professor Hanning, company is an artificial person. Artificial person मतलब we are a human being. We are a natural person. हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम चलते हैं और हम गुस्सा भी करते हैं, हम हंसते भी हैं और रोते भी हैं. Because we are a human being. हमारे पास अपना खुद का दिमाग होता है. Exceptional may be applied. तो ऐसा नहीं कि वो they are not a human being. So exceptional may be applied. तो basically you know very well human beings का मतलब होता है या living things का मतलब होता है या कह सकते हो natural पर्सन जिसे कहते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है. लेकिन कंपनी इज जस्ट लाइक अ पर्सन जिसे किसी लॉ के थ्रू या जिसे किसी स्पेशल प्रोविजन के थ्रू पर्सन का दर्जा दिया गया है. पर्सन मतलब व्यक्ति, इंसान का दर्जा दिया गया है. जैसे हम अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कंपनी भी क्या कर सकती है, बैंक में अपना अकाउंट खोल सकती है. बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. वो इन्वेस्ट कर सकती है, वो एसेट्स परचेस कर सकती है, किसी से कोई परेशानी हो या उसको किसी से कोई लॉस हुआ हो तो वो उसके खिलाफ केस भी कर सकती है. यू नो वेरी वेल. उसी तरह से क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है
और इसे आर्टिफिशियल पर्सन बनाया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंपनीज एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के थ्रू कंपनी जो भी कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड होती है, बनती है, उसे एक पर्सन का दर्जा मिलता है, जस्ट लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड, कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ लॉ। यू नो वेरी वेल, हम जो लोग भी क्रिएट हुए हैं, वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। बट कंपनी का जो जन्म है, कंपनी का जो क्रिएशन है, इट इज डिपेंड ऑन द लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एज वेल एज कंपनी हैज एन सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की अपनी ऑटोनोमस थिंग होता है, उसकी अपनी खुद की एंटिटी होती है, एंड विच आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कंपनी के जो मेंबर हैं उनकी एंटिटी अलग है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी की एंटिटी अलग है। सपोज आर्मी पब्लिक स्कूल इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यू नो वेरी वेल, इट इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन। अब आर्मी पब्लिक स्कूल की एंटिटी अलग है और वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के ओनर्स, वहाँ के मेंबर्स, वहाँ के टीचर्स की अपनी खुद की एंटिटी। हाँ, ये बात अलग है कि कंपनी की एंटिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन द मेंबर्स एंटिटी। इफ मेंबर्स आर डूइंग गुड, सो द एंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी गुड। यानी अगर सिंपल सी बात करें कि सेपरेट एंटिटी का यह मतलब है कि कंपनी अपनी खुद की एक एंटिटी रखती है, अपनी खुद की एक पहचान रखती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि दे हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी अनंत जीवन तक चलती रहेगी, किसी के जीने से, किसी के मरने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यू कैन सी दैट द एग्जांपल ऑफ द बिरला कंपनी, अदानी अंबानी कंपनी, जैसे कि रिलायंस को स्टैब्लिश किया था धीरूभाई अंबानी ने, लेकिन वो अभी नहीं है, उनके बेटे उस कंपनी को चला रहे हैं। आप ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी और उसकी आगे की पीढ़ी उसको रन करती रहेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले की है, जिसको इंडिया के लोगों ने नहीं चलाया, ब्रिटिश ने चलाया, लेकिन इंडिया चला रही है। सो यू नो वेरी वेल कि और कई ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया की है और विदेश में चल रही है। सो इट इज नॉट टोटली डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर पर्सन। आई वांट टू से दैट कि कंपनी की अपनी एक परपेचुअल सक्सेशन होती है, इसकी लाइफ इंडेफिनिट पीरियड के लिए होती है, किसी के मरने जीने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनी हैव अ कॉमन सील। कॉमन सील इज जस्ट लाइक अ सिग्नेचर। जिस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए एक सिग्नेचर कस्टमाइज करते हैं, उसी तरह से कंपनी भी अपने डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने के लिए उस पर कॉमन सील क्या करती है, प्रेजेंट करती है। सो दिस इज एन ऑल अबाउट द कंपनी एंड दीज आर द फेमस डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. Okay, so please note down. So from the given definition of profession Hennig about the company, we can easily sort out the important feature of company. So if we are talking about the feature of company according to the Professor Hennig, so these are: company is an artificial person, second, company created by a law. Without law we cannot create a company. Third, company has a separate entity, it means it is a different from one another entity. Fourth will be a company have a perpetual succession, it means कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड पीरियड तक रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। एंड नंबर फिफ्थ विल बी अ कंपनी हैव अ कॉमन सील्स, यानी कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है, बिकॉज कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद तो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं कर सकती,
लेकिन इसके अलावा कंपनी की मुहर बनाई जाती है, यू नो वेरी वेल, सील। अगर कंपनी के किसी भी अथराइज्ड डॉक्यूमेंट पे वो सील नहीं लगी है, इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। सो कंपनी के उस डॉक्यूमेंट के वैलिडेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सील उस पर प्रिंट होनी चाहिए। सो दीज आर द फ्यू फीचर ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हैने, एंड इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है। सो प्लीज रीड इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट so please ask me. So these are the all about the definition of the companies and the feature of the company, and I request you to each and every student, please note down in your copy properly. So in today's video, firstly we conclude the chapter number 6 of the volume 1, that is a dissolution of the partnership form, and thereafter we will start and introduce the first topic of the volume 2 of the class 12th of part A, accountancy. So I hope today we cleared all the things very easily. So thank you, take care, goodbye.